A very good morning to all the students. Let's start with the next numerical. Previously, we have given you an assignment work finding out the unknown forces P1 and P2 with the help of the hint that was given to you in the numerical. And I hope all of you have already uh, completed your assignment and submitted to me on due time and date. So let's move on to the next numerical that is given to you. That is question number 30, which says a rigid bar AB. There is a rigid bar given to you, that is AB, rigid bar, is subjected to a system of parallel forces. It is subjected to a system of parallel forces. It is subjected to a system of parallel forces. That is, these are the four forces given to you. ठीक है. Reduce the given force system to an equivalent. क्या बोल रहे हो कि आपको एक फोर्स सिस्टम को रिड्यूस करना है इनटू एन इक्विवेलेंट. नंबर वन आर, सिंगल रिजल्टेंट. इसको सिंगल रिजल्टेंट में रिड्यूस करना है. आपको आता है रिजल्टेंट निकालना, तो बस वही करेंगे आप. सेकंड थिंग, फोर्स सिस्टम एट डी. What does that mean? This is the new term that has been asked to you, that is a force system at D. What does that mean? It simply means you have to determine summation of moment of all the forces at point D. Similarly, summation of moment of all the forces at point A is asked in point number 3. Okay. So I want you all to submit this as an assignment number 4. You have to solve this numerical and have to submit this in assignment number 4, because I think all of you must be knowing how to determine the resultant, how to determine the moment of all the forces at particular point. But still, I am going to show you the solution for the same, as I have already solved this numerical. So the force system has been given to you on a bar AB, which is subjected to four parallel forces. Some are acting upward and some are acting downwards at their particular points A, B, C, and D. Okay. What you have to do, you have to find out the resultant. You have to find out all the force, the moment of all the forces at point D and the moment of all the forces at point A. And that has already been taught to you. So look at the first step, in which we are finding out the resultant by the specific formula, in which summation of f of x is not required, as there is no force in x direction available. As there is no force in x direction available. तो इसकी वैल्यू तो सीधा जीरो हो जाएगी. देयर आर ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन. तो पूरे फोर्सेस के वाई डायरेक्शन में उसको मैं लिख ले रहा हूँ +20, नीचे जाने वाला -40, ऊपर जाने वाला +35, नीचे जाने वाला -25. ये ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन हो गए, इसका स्क्वायर. आर की वैल्यू निकल गई बाय कैलकुलेशन. नाउ वैल्यू फाउंड आउट टू बी 15 kilonewton. Next thing to be found out is summation of moment of all the forces at point D. तो बस आप वही करोगे, पूरे फोर्सेस का मोमेंट डी पर लोगे. कैसे लेते हैं पूरे फोर्सेस का मोमेंट? 20 का मोमेंट डी पर, तो 20 इंटू 3. फोर्स ऐसा है तो डिस्टेंस ऐसा, यहाँ जाने से डी आ रहा है. 20 इंटू कितना चलना पड़ रहा है? 3. 20 इंटू 3 कैसा घूम रहा है? पॉजिटिव. तो +20 इंटू 3. 45 का मोमेंट डी पर, तो 45 इंटू 2 कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो -45 इंटू 2. 35 का मोमेंट डी पर, तो 35 इंटू यहाँ जाने से डी आ रहा है क्या? नहीं. यहाँ जाने से डी आ रहा है? नहीं. डी कहाँ है? उसी की लाइन में. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 0. तो 4 से 35, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 0. तो 35 इंटू 0, यहाँ पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वैल्यू आ रही है 0. 25 का मोमेंट डी पर, तो 25 इंटू 2 कैसा घूम रहा है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव 25 इंटू 2. आप सम करेंगे, वैल्यू निकालेंगे. आई हैव फाउंड आउट द वैल्यू एज 20 किलोन्यूटन मीटर. फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट किलोन्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर. तो 20 किलोन्यूटन मीटर. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए. तो आप ए पर मोमेंट लेंगे हर फोर्स का. 20 का मोमेंट ए पर, तो 20 इंटू यहाँ जाने से ए आ रहा है कि नहीं, यहाँ जाने से ए आ रहा है कि नहीं, ए कहाँ है? उसी के नीचे. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 0. तो 20 इंटू 0, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मायने नहीं है. ठीक है. 45 का मोमेंट ए पर, तो 45 इंटू 1 कैसा घूम रहा है? इट्स क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव. तो इट बिकम्स 45 इंटू 1 पॉजिटिव. देन 35 का मोमेंट ए पर, तो इट बिकम्स 35 इंटू 3 and it is rotating in anti-clockwise direction. So it becomes -35 into 3. See here it is written -35 into 3. The next force is 25. The moment of 25 at point A, it becomes 25 into the distance is
5 and it is rotating in clockwise direction. So the value becomes 25 into 5, that is positive. You will going to sum up this, and the value that has been found out is 65 kilonewton meter. So this is how you are going to solve this numerical, and you will have to submit it by Friday morning. Okay, so this is your assignment number 4, which is already going to be uploaded on Google Classroom by today itself. Okay, so let's move on to the next numerical, which says the resultant of 4 forces of which 3 forces are shown in figure. What does that mean? There is a resultant of how many forces? Of 4 forces. जिसमें से कितने forces figure में shown है? 3 forces are shown in figure, and the value of resultant is given to you, that is 520. So the value of resultant is given to you, that is 520 Newton. How it is acting? It is acting down to right. It is acting down to right. It is not just down, it is down to right. So that means that R is inclined in 4th quadrant. So that is what we are showing, that R is down to right in 4th quadrant. It is acting down to right with a slope of 5 to 12. See, the slope is also given to you, 5 to 12, which means the slope is 5 vertical to 12 horizontal through point A. It is passing through point A. So we have shown it that it is passing through point A. So I'm going to solve this numerical and I'm going to show you the solution, how it is found out. Some more thing has been written over here, so we are going to look for it at once. If P is 200 Newton and F is 200 Newton, देखिए यहाँ पर 3 फोर्सेस है, 1 2 3, तीनों भी 200 है, तो किसी को भी आप नाम दे दो. See, suppose this is F and if F is 200 Newton and if P is 200 Newton, तीसरे को नाम नहीं दिया तो we consider it as Q. If P is 200, F is 200 and this is Q 200, determine the missing force C. देखो आपको क्या बोला उसने, फिगर में 4 फोर्सेस रहना चाहिए, लेकिन कितने शोन है? ओनली 3 फोर्सेस आर शोन. ओके, तो वेयर इज द 4th फोर्स? वही आपको निकालना है. डिटरमाइन द मिसिंग फोर्स सी और उसका लोकेशन निकालना है. ठीक है, तो बस आपको ये फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिसिंग फोर्स सी एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस सी. और लोकेशन में भी एक्स और वाई नहीं निकालना है, सिर्फ एक्स निकालना है. ठीक है, तो वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल नाउ. तो सी बताया है कि कहाँ है? नहीं बताया है. तो सिंस T is missing in फिगर में है क्या? नहीं है. तो हम मानेंगे, क्योंकि हम हर चीज जो अज्यूम करते हैं वो पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे. लेकिन क्या इसको हम हॉरिजॉन्टल अज्यूम करेंगे या वर्टिकल अज्यूम करेंगे? कह नहीं सकते, एंगल पर डिपेंड करता है. कि एंगल अगर 0 आता है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल कंसिडर करेंगे, एंगल अगर 90 आता है तो हम उसको वर्टिकल कंसिडर करेंगे. बट अभी पता है क्या एंगल नहीं, तो हम क्या मानेंगे? वो इंक्लाइंड है. एंगल निकालेंगे, फिर उसके बाद पता चल जाएगा वो इंक्लाइंड है या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है. ठीक है, फिलहाल हम मानेंगे कि वो इंक्लाइंड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो सिंस द टी इज मिसिंग इन फिगर, so we will assume that T is directed in first quadrant. T is inclined and directed in first quadrant. We will consider that T is inclined in first quadrant. तो हमने T को inclined शो कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता हुआ, और क्योंकि T inclined है हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे. तो ये बन गया x कॉम्पोनेंट, ये बन गया आपका y कॉम्पोनेंट. तो x कॉम्पोनेंट का वैल्यू Tx, y कॉम्पोनेंट Ty. ठीक है, सिमिलरली आपके फिगर में एक और फोर्स है जो इंक्लाइंड है, उसको भी रिजॉल्व करेंगे हम. तो रिजॉल्व करने के लिए उसका एंगल अल्फा पता होना चाहिए. तो हमको दिख रहा है यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल को मैंने अलग से बना दिया. अल्फा निकालना है, अपोजिट वैल्यू है 1 2 3 4 और एडजेसेंट है 1 2 3. तो ये अल्फा निकाल लिया मैंने 53.13. मेरे पास एंगल आ गया, मैं दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ. एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स में आएगा कॉस, इसमें आएगा साइन. तो 200 कॉस 53.13, वैल्यू आई है 120.
और ये हो जाएगा 200 साइन 53.13, जिससे वैल्यू आएगी 160। तो मुझे दिख रहे हैं मेरे पूरे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल। और ये इंक्लाइन समझे थे हमने, इसका भी दो निकाल लिया है, एक टी एक्स हॉरिजॉन्टल, एक टी वाई वर्टिकल। अब मेरे पूरे फोर्सेस जो फिगर में होने चाहिए थे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो चुके हैं, ये तीन फोर्सेस और ये एक चौथा फोर्स। ठीक है, अब आर के ऊपर आते हैं, आर के हिंट को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हिंट मेरी क्या कहती है? हिंट बोलती है आर इज 520, मान लिए। सेकेंड हिंट बोलती है आर इज डाउन टू राइट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, बना लिया हमने। फिर उसकी स्लोप गिवन है 5 वर्टिकल 12 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मार्क कर दिया हमने। और आर इज एट पॉइंट ए, तो ये हम सब पॉइंट्स को पकड़ कर आर बना लिए। आर इज इंक्लाइंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, डाउन टू राइट होने की वजह से। उसकी स्लोप 5 वर्टिकल 12 हॉरिजॉन्टल लिख दिया है, वो एट पॉइंट ए है, बना दिया है। अब अगेन क्योंकि हमको ये दिख रहा है इंक्लाइंड, हम इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू एक्स एंड वाई। एक्स कंपोनेंट जो होता है रिजल्टेंट का, वो क्या होता है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और वाई कंपोनेंट क्या होता है? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो जैसे कि आपके पास आर की वैल्यू है और इससे आप एंगल निकाल सकते हो, थीटा निकालना है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 22.62 निकल गया। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 520 इंटू कॉस 22.62, 520 कॉस 22.62, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 480 न्यूटन। यहाँ पे साइन लगाएंगे, वैल्यू आ गई 200 न्यूटन। अभी तक मैंने क्या किया हूँ? पूरे प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किया हूँ, और रिजल्टेंट की जो हिंट थी उससे रिजल्टेंट बना दिया, इंक्लाइंड था इसलिए उसको भी रिजॉल्व कर दिया। कहने का मतलब सब चीजें मैंने अभी फिलहाल रिजॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है, और हिंट पे काम चालू कर दिया है। आर आर इज गिवन दैट इज 520। आर की वजह से हमको दो कंपोनेंट मिल गए, बिकॉज आर इंक्लाइंड था, उसके दो कंपोनेंट हमने निकाल लिया, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स दैट इज 480, और समेशन एफ ऑफ वाई दैट इज 290 200 सॉरी। तो बस यही दोनों स्टेप को मैं यूज करूंगा और मेरे अननोन फोर्स टी एक्स टी निकालू। डायरेक्ट टी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेंगे? उनके चिल्ड्रन निकलेंगे, और चिल्ड्रन से हम पेरेंट निकाल सकते हैं, हमको आता है, तो हम चिल्ड्रन निकालेंगे यही दो स्टेप को यूज करके। तो पहली स्टेप, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 480 न्यूटन। समेशन एफ ऑफ एक्स मतलब पूरे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट जाने वाले पॉजिटिव, लेफ्ट जाने वाले नेगेटिव, इक्वल्स टू 480 न्यूटन। अब मैं फिगर से इसकी वैल्यू लिखता हूँ, तो मैं फिगर पे आता हूँ, पूरे फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल है वो लिखते चले जाता हूँ। कितने फोर्सेस दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे? ये एक दिख रहा है, राइट जा रहा है तो पॉजिटिव प्लस 200। ये एक दिख रहा है, राइट जा रहा है तो पॉजिटिव, वैल्यू है प्लस 120। क्या यही दो है? नहीं, यहाँ पर और एक फोर्स है जो फिगर में होना चाहिए था, लेकिन मैंने अलग से बताया क्योंकि फिगर में मिसिंग है। तो प्लस 200 प्लस 120 और प्लस सी एच, बस लिख दूंगा मैं, प्लस 200 प्लस 120 प्लस सी एच। हो गए पूरे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वाले, इक्वल टू 480। क्या था अननोन? सी एक्स, वो आगे आपकी वैल्यू आ गई 160 न्यूटन। एच ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब सेकंड हिंट वो यूज कर रहा हूँ, दैट इज समेशन एफ आई इक्वल 200 न्यूटन। समेशन एफ आई इक्वल टू 200 न्यूटन, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे जाने वाले नेगेटिव। फिगर में चेक करता हूँ कितने हैं और उनको लिख लेता हूँ। देखिए कितने फोर्सेस वर्टिकल है, ये एक दिख रहा है, प्लस 160 माइनस 200, और इसमें देखिए प्लस सी वाई। तो क्या क्या आ जा रहा है? प्लस 160 माइनस 200 प्लस सी वाई, प्लस 160 माइनस 200 प्लस टी वाई इक्वल्स टू, ये 200 यहाँ उतर गया। क्या अननोन है? टी वाई निकल गया 240, पॉजिटिव आया क्योंकि दोनों की साइन टी एक टी वाई चिल्ड्रन की पॉजिटिव पॉजिटिव आई, दैट मीन्स इट इज करेक्ट जो हमने अज्यूम किया था, इट इज करेक्ट दैट टी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया कि टी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टी का एंगल कितना है अभी नहीं पता, क्या टी का एंगल 0 है कि टी का एंगल 90 है या कुछ और आता है, ये हमको अभी नहीं पता है। एंगल ऑफ टी अभी नहीं पता है, ठीक है, एंगल ऑफ टी अभी नहीं पता है। यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। आगे, वी वर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मिसिंग फोर्स टी। हमको टी एक्स टी वाई नहीं, इनके चिल्ड्रन नहीं चाहिए था, पेरेंट चाहिए था।
तो वी वर रिक्वायर्ड टू फाइंड मिसिंग फोर्स टी। तो टी निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो था बस वही लगाएंगे, आर इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो वैसे ही जैसे आर के दो बेटे थे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, वैसे टी के दो बेटे हैं, टी एक्स और टी वाई। तो आर के फॉर्मूले में आता है ये दोनों का अंडर रूट में सम करके स्क्वायर, है ना। वैसे ही टी का भी रहेगा कि टी के टी वैल्यू निकालना है, तो ये अंडर रूट आ जाएगा और ये स्क्वायर प्लस और ये स्क्वायर, तो बस वही लगाया। टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी ए स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट अप कर दिया, टी की वैल्यू आ गई। ये मुझे फाइंड आउट करना था, मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब टी का एंगल निकाल लेते हैं। तो टी का एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टी वाई अपॉन टी एक्स। जैसे कि हम रिजल्टेंट में उसका एंगल निकालते थे, रिजल्टेंट का वैसे ही टी का एंगल निकालेंगे। तो ये टी वाई की वैल्यू 240, टी एक्स की वैल्यू 160, थीटा निकल गया 56.31। तो आपके टी की शक्ल ऐसी होगी, टी है हॉरिजॉन्टल, सॉरी टी है इंक्लाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी वैल्यू 288.44 आई है। इसका एक्स कॉम्पोनेंट 160, वाई कॉम्पोनेंट 240 और उसका एंगल अब निकल चुका है, दैट इज 56.31। अब आपको क्या निकालना है, ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। अब आपको निकालना है फोर्थ स्टेप, दैट इज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ आर, सॉरी टी, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ टी, ओनली रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट। यही पूछा है ना बस कि एक्स इंटरसेप्ट निकाले। तो मैं क्या करूंगा, इस टी को ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर लोकेट कर दूंगा, बस और कुछ नहीं। तो ये मैंने ओ से यानी ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर ये टी को लोकेट कर दिया, टी जो कि ऐसा आ रहा था उसको लोकेट कर दिया, कितने डिस्टेंस पर, एक्स इंटरसेप्ट आई एक्स पर, जो कि अननोन है, यही तो निकालना है हमें। अब लोकेशन ऑफ टी और एक्स डिस्टेंस निकालना है, इसलिए ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर टी को लोकेट कर दिया। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स भी बना दिया, ये था टी एक्स, ये था टी वाई, तो उनको लिख दिया। ठीक है, अब कोई भी लोकेशन निकालना पड़ता है तो हम क्या यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज द वेरिग्नॉस थ्योरम व्हिच सेज दैट समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। तो मैं जितने भी फोर्सेस है उनका मोमेंट लूंगा ओरिजिन पर और फिर रिजल्टेंट का मोमेंट लूंगा ओरिजिन पर। ठीक है, तो बस ये एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ कि हर एक फोर्सेस का मोमेंट लेता हूँ ओरिजिन पर। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, 200 का मोमेंट ओरिजिन पर, तो 200 इंटू 2 कैसा घूम रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस 200 इंटू 2। आगे बढ़ते हैं, ये वाले फोर्स का मोमेंट ऊपर, तो 200 इंटू 4 कैसा घूम रहा है, अगेन क्लॉकवाइज, तो प्लस 200 इंटू 4, ये लिख दिया प्लस 200 इंटू 4। आगे बढ़ते हैं और फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं, ये है फोर्स 120, इसका मोमेंट ऊपर, तो 120 इंटू ये इधर तक आना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगी आप, तो 120 इंटू 1 2 3 4 कैसा घूम रहा है, पॉजिटिव, तो 120 इंटू 4 पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस 160 का मोमेंट लेते हैं ऊपर, तो 160 इंटू 1 2 3 कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 160 इंटू 3। और कोई फोर्स है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ, आपका टी है, टी कहाँ लोकेट किया, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ लोकेट कर चुका उसको ओरिजिन से एक्सिस्टेंस पर, तो ये इसको यूज करके मैं टी को भी मोमेंट ले लूंगा। टी एक्स का मोमेंट ऊपर यानी कि 160 का मोमेंट ऊपर ले सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है, ये टी एक्स ऑलरेडी ओ में आ रहा है, तो ये 160 इंटू 0 हो जाएगा, इसकी पॉजिटिव साइन डाल दो, ये वैसे ही कट गया। 240 का मोमेंट है ऊपर, तो 240 इंटू आई एक्स कैसा घूम रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस 240 इंटू आई एक्स, ये हो गए पूरे फोर्सेस खत्म। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ओ लिखना है, तो रिजल्टेंट कहाँ है, रिजल्टेंट है किधर,
ये यहाँ है रिजल्टेंट आपका, जिसकी वैल्यू थी 520, जिसके दो कंपोनेंट आपने निकाल चुके हो। एक कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 480 और दूसरे की 200, तो बस यहाँ लिखते रहो 480 और एक 200 न्यूटन, करेक्ट है। तो बस मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का मोमेंट ऊपर, अब रिजल्टेंट का मोमेंट ले सकता हूँ क्या ऊपर, नहीं, इसके दो कंपोनेंट्स का ले सकता हूँ क्योंकि ये इंक्लाइंड है, तो इनके कंपोनेंट्स का मोमेंट लूंगा ऊपर। स्टार्ट करता हूँ 200 से, तो 200 इंटू 1 2 3, कैसा घूम रहा है पॉजिटिव, तो 200 इंटू 3 ये लिख लेता हूँ। रिजल्टेंट का मोमेंट लिख रहे हैं हम, आगे 200 इंटू 3, आगे बढ़ते हैं। 480 का मोमेंट ऊपर, तो 480 इंटू यहाँ तक आ गए तो आप ऊपर आ गए, कितना चलना पड़ रहा है 1 2, कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस 480 इंटू 2। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस 480 इंटू 2। कितने अननोन नजर आ रहे हैं इसमें, चेक करिए आप लोग। आई होप एक ही अननोन है यहाँ पर जो कि हमको निकालना है, वो निकल जाएगा। तो आप आई एक्स की वैल्यू निकालिए। पहले मैं पूरे कांस्टेंट को कम कर लेता हूँ। टू हंड्रेड इंटू टू प्लस 200 इंटू 4 प्लस 120 इंटू 4 माइनस 160 इंटू 3, दैट बिकम्स 1200 प्लस 240 आई एक्स ये वाला इक्वल्स टू, ये कितना आता है चेक कर लेते हैं। 200 इंटू 3 प्लस 480 इंटू 2, दैट बिकम्स 1560। अब कांस्टेंट एक तरफ, अननोन एक तरफ, 1560 माइनस 1200, 240 आई एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाता है 360। आई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 360 डिवाइड बाय 240, ये वैल्यू कितना आता है चेक कर लेते हैं। 36 डिवाइड बाय 24, दैट बिकम्स 1.5 मीटर। आई एक्स की वैल्यू आ गई। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कि ये वैल्यू कैसे आई है। So I hope this is clear to all of you. This is also required to be solved in your assignment number 4, and you will probably going to submit this to me by Friday. Okay. Let me check whether the value is correct or not at first. Okay. I can see that there is some fault in this step. Okay. Let me check it at once. Okay. We have written summation of fy as 200, but जब यहाँ पे हम सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं summation of fy equals to माइनस 200 लिखा जाएगा, क्योंकि हम ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो ये माइनस 200 है। ओके, इसको वापस से हम चेकआउट कर लेते हैं। तो दिस इज माइनस 200, इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, ये 160 बचता है। और पॉजिटिव है क्या, नहीं नेगेटिव है। ओके, so this is positive negative, so it is not in first quadrant but it is in second quadrant, so T is in second quadrant. T is in second quadrant, ठीक है। आप T की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे ये है माइनस 160, इसको चेकआउट कर लो कितना वैल्यू आता है। माइनर चेंजेस है 160 स्क्वायर प्लस 160 का
square under root of answer, that becomes 226.27 Newton. So the value of T is 226.27 Newton. आपका T सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है, उसका एंगल चेक कर लेते हैं. Tx is 160, Ty is also 160. करेक्ट. क्योंकि ये मॉड में रहेगा इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे. So that gives you the angle as 45 degree, क्योंकि tan inverse of 1 is 45 degree. करेक्ट. So that gives you T का ऐसा शेप नहीं रहेगा. अब T का शेप कहाँ चला जाएगा? T will be in सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स आए पॉजिटिव. so sorry. T is in fourth quadrant. Positive, negative, that means fourth quadrant. So sorry. Fourth quadrant. T is in fourth quadrant. तो आपका T फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता हुआ दिखना चाहिए. इसकी वैल्यू आई है 226.27. इसके दो कंपोनेंट्स आपने निकाल चुके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू है 160. देखिए आपको समझ में आना चाहिए, ये एक मिस्टेक से आपको समझ में आया होगा कि एक छोटी सी मिस्टेक से आंसर में कितना डिफरेंस आ जाता है. यहाँ पे प्लस 200 लिख लिया था, बट ये होना चाहिए था -200. ठीक है. तो -200 क्यों? क्योंकि ये डाउन जा रहा था. तो समेशन एफ वाई की वैल्यू जब विदाउट फिगर लिखते हैं तो -200 लिखते हैं, और फिर जब हमने चेक किया तो पता चला वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है. फोर्थ क्वाड्रेंट बना लिया. इसको ऊपर ना शो करते हुए हम नीचे शो करेंगे, दैट T इज दिस, और ये इसकी वैल्यू 160 है. ये दो कंपोनेंट Tx और ये Ty. वापस से लोकेट करेंगे आप सब कुछ. ये T के दो कंपोनेंट थे, 160 इंटू 0 और ये 160 इंटू आई एक्स प्लस 160 इंटू आई एक्स. ये तो बाकी सही है. तो 160 इंटू आई एक्स, यहाँ पे 160 160 160, 360 डिवाइड बाय 160, दैट गिव्स यू द वैल्यू एज 2.25 मीटर. स्टूडेंट्स, इसको आप प्रॉपरली सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट नंबर 4 में सेंड करेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.